جانی بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آواز بن گئے۔ چینی صحافیوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہو رہی ہے، مگر مغرب میں ایک خاص خاموشی ہے۔ عالمی برادری انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر خاموشی توڑے۔ دنیا کا انسانی حقوق کے حوالے سے دوہرا معیار ہے۔ افغان عوام 40 برس سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ 4 کروڑ لوگ بڑے انسانی بحران کا شکار ہیں۔ عالمی برادری افغانستان کو انسانی بحران سے بچانے میں تعاون کرے۔ پاک چین اقتصادی تعلقات پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سی پیک ایک مرحلے میں داخل ہو رہا ہے جس میں توجہ صنعتی ترقی پر ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ماضی میں معیشت کی بہتری پر توجہ نہیں دی گئی۔ ہم شہریوں کو غربت سے نکالنے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ چین نے اپنی معیشت پر توجہ دی، پیسہ چند لوگوں کے پاس نہیں گیا۔ In Kashmir, the worst violations of human rights are taking place by India. And somehow there is selective silence about human rights in Kashmir, where there's something like 9 million people who are, really basically living in the worst conditions in almost an open prison. Afghanistan has suffered for 40 years. And it's always because of outside countries who have made Afghanistan into a battleground. And now after 20 years, if everyone abandons Afghanistan, the situation, number one, the people of Afghanistan, and I'm talking about almost 40 million people of Afghanistan, they are going to, you could see the worst humanitarian crisis there. The relationship between the two countries has just got stronger over a period of time. And one of the main reasons is that feeling in Pakistan is that China has always stood with us in our times of need. When Pakistan has over the years been in a difficult period, China has stood with us and Pakistan has stood with China. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چاہتا ہوں چین کی کرکٹ ٹیم اس کھیل میں نام بنائے۔ چینی کھلاڑیوں کو کرکٹ سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ کورونا کے دوران کھیل کی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں۔ آئندہ ہفتے دورہ چین کا منتظر ہوں۔ پہلے اولمپکس ہوں گے جس میں شرکت کروں گا۔ میں نے کبھی بھی اولمپکس میں شرکت نہیں کی، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے شارع قراقرم کی تعمیر کے دوران جانوں کی قربانی دینے والے چینی شہریوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ This is the first Olympics, let alone it's a winter one, but it's the first Olympics I will be ever witnessing, so I look forward to that. And of course, I was a sportsman for almost 20 years of my life. I was an international sportsman. People in China don't play cricket. I'm hoping that as our relationship gets stronger, we will also teach Chinese how to play cricket so that China can also become a great cricketing team. I think it's a very pandemic has devastated apart from anything else. It's sporting events all over the world have been affected by the pandemic. I was in school when the Karakoram highway was being built, and that was a collaboration between the Chinese government and the Pakistan Army. And it was a very difficult venture because the road was very difficult, there were steep mountain sides. And I remember the number of Chinese who died building the Karakoram highway. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے کورونا وائرس کی۔ تو ملک میں کورونا کے وار سنگین ہو گئے ہیں۔ مزید 27 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 7,963 نئے مریض سامنے آئے۔ شرح 11.31% پر آ گئی۔ پشاور میں کورونا نے پنجے گاڑ لیے۔ آج 5 افراد جاں بحق ہوئے، وہیں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا کیسز کی تعداد 1,90,578 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں آج کورونا کے 2,283 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ تعداد 4,74,208 ہو گئی۔ سندھ میں کورونا کے 5,38,196 کیسز ہیں۔ اسلام آباد میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,25,203 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں کورونا سے اموات کی تعداد 29,219 ہو چکی ہے، جبکہ 14,10,033 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔
कराची समेत सिंध भर में कोरोना के वार थम ना सके। आज 15 अफराद जाँ बहक हो गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक एक दिन में 2111 कोरोना केसेज रिपोर्ट हुए, जिनमें से 1608 मरीजों का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। शहर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 21.5% पर आ चुकी है। 382 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 25 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर में कोरोना के फैलाव में तेज़ी पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। लोगों के घरों से गैर ज़रूरी बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इंतज़ामिया के मुताबिक कोटली हाउसिंग स्कीम में 7 दिन के लिए शहरों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई है। SOPs पर भी सख्ती से अमल दरामद के अहकामात हैं। अगर किसी शहरी को बिलावजह घर से निकलते पाया गया तो उसे 14 दिन के लिए करंटीना में रखा जाएगा। हाउसिंग स्कीम कोटली के तमाम रिहायशी सिर्फ इमरजेंसी में ही घर से निकल सकेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में एक और जालसाजी पकड़ी गई। न्यूज़ वन ने लाहौर में इंतकाल कर जाने वाले अफराद को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। तफसीलात मोहम्मद फैसल खान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। फौजशुदगान अफराद को वैक्सीन लगाने के मामले ने कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का पोल खोल दिया। अफसरान की हदायत पर फौजशुदगान अफराद को वोटर लिस्टों के जरिए से कोरोना वैक्सीन की जाली एंट्रियां डाली गयी। रिकॉर्ड के मुताबिक मरहूम मोहम्मद साबिर, जिनकी तारीख वफात 28 जनवरी 2020 है, मरहूम मोहम्मद साबिर को साइनोवेक वैक्सीन 20 दिसंबर 2021 को मरने के बाद लगाई गई। मरहूम मोहम्मद साबिर को मरने के तकरीबन 22 माह बाद वैक्सीन लगाई गई, यानी कि जाली एंट्री डाली गई। रिकॉर्ड के मुताबिक मरहूम मोहम्मद हनीफ की तारीखी वफात 17 नवंबर 2021 है। मरहूम मोहम्मद हनीफ को साइनोवेक की डोज 25 दिसंबर 2021 को मरने के बाद लगाई गई। मरहूम मोहम्मद हनीफ को मरने के 38 रोज बाद वैक्सीन लगाई गई। सेक्रेटरी हेल्थ प्राइमरी इमरान सिकंदर बलोच का फौजशुदगान अफराद को वैक्सीन न लगने का मौक़िफ़ झूठा निकला। शहर के मुख्तलिफ जोन ताहाल फौजशुदगान अफराद को रिकॉर्ड में वैक्सीन लगाकर जाली एंट्रियां डाली जा रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ मोहम्मद फैसल खान, न्यूज़ वन, लाहौर। खैरपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एहलकारों को ज़ायदुल मियाद कोरोना वैक्सीनेशन करने पर मामले पर DSP गुलाम अली जमानी ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। इंक्वायरी में डॉक्टर अमरलाल समेत 5 महकमा सेहत मुलाजमीन को जिम्मेदार करार दे दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 170 पुलिस एहलकारों और अफसरान को ज़ायदुल मियाद बूस्टर डोज लगाई गई। 24 जनवरी को एहलकारों को लगाई जाने वाली वैक्सीन की मियाद दिसंबर 2021 में ख़त्म हो चुकी थी। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में मजीद 10,501 जिंदगियां निकल लीं। 34,54,000 नए केसेस भी सामने आ गए। अमेरिका में 2,732 और भारत में 862 अफराद हलाक हो गए। चीन ने बीजिंग में ट्रेन और बस सर्विसेज भी महदूद कर दी। बीजिंग में सरमाई ओलंपिक्स से कबल कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में ज़ेरे तामीर इमारत की छत गिरने से 12 अफराद मलबे तले दब गए। वाक़या डिफेंस फेज 6 में आयशा मस्जिद के करीब पेश आया। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुँच गई हैं, जबकि मलबा हटाकर जख्मियों को निकालने का काम ताहाल जारी है। कराची में ज़ेरे तामीर इमारत जिसकी छत गिरने से 12 अफराद मलबे तले दब गए हैं। वाक़या डिफेंस फेज 6 में आयशा मस्जिद के करीब पेश आया। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंची और इमदादी टीमों ने मलबा हटाकर जख्मियों को निकालने का काम शुरू किया। अब तक इत्तलात के मुताबिक 2 अफराद मलबे से निकाले जा चुके हैं। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, जबकि एक बच्चा जख्मी हो गया। छत गिरने से घर में सोए हुए खानदान के अफराद मलबे तले दब गए। इत्तला मिलने पर पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं और मलबे से 4 अफराद की लाशें और एक जख्मी बच्चे को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू काम के मुताबिक मरने वालों में खातून, उसकी 4 साला बेटी, 1 साला बेटा और 1 माह का बच्चा भी शामिल है।
नारोवाल में अंधेर नगरी चौपट राज 9 साला बच्चे को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। वाकया थाना शाह गरीब के हदूद में पेश आया। अहले खाना के मुताबिक 9 साला उमैर चीज़ लेने निकला था, उसे नामालूम मुल्जिमान ने अगवा कर लिया और कत्ल के बाद लाश खेतों में फेंक कर फरार हो गए। नन्हे बच्चे के कत्ल पर अहले खाना गम से निढाल है। बच्चे के वालिद की मुद्दत में अगवा और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का यह कहना है कि जल्द ही मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपको अपडेट करें कि ठट्टा केटी बंदर के समुद्र में डूबने वाले 12 माहीगीरों में से 9 की लाशें निकाल ली गई हैं। पाक नेवी मैरी टाइम एजेंसी और मकामी गोताखोरों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन 8 रोज से जारी है। इंतजामिया के मुताबिक मजीद 3 माहीगीरों को तलाश किया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लाहौर की सेशन कोर्ट में मुश्तइल अफराद ने वकील के चैम्बर पर धावा बोल दिया। मुलजिम के साथियों ने मुकदमे में रिलीफ ना दिलवाने पर वकील और साइलिन को तशद्दुद का निशाना बनाया। सेशन कोर्ट सिक्योरिटी ने तशद्दुद में मुलविस अफराद को हिरासत में ले लिया। लाहौर की सेशन कोर्ट में मुश्तइल अफराद ने वकील के चैम्बर पर धावा बोल दिया और मुलजिम के साथियों ने मुकदमे में रिलीफ ना दिलवाने पर वकील और साइलिन को तशद्दुद का निशाना बनाया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिंध के बल्दियाती कवानीन के खिलाफ मुत्तहिदा कौम मूवमेंट आज क्लिफ्टन कराची में एहतजाज करेगी। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है कि कराची के ताजरों और सनतकारों ने बल्दियाती एक्ट को मानने से इनकार किया है। आज क्लिफ्टन 3 तलवार पर एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को मामू बना दिया, जल्द शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला हाउस के सामने मुजाहरे पर तशद्दुद के खिलाफ एमकेएम के रहनुमा पाकिस्तान महफूज यार ने थाना सिविल लाइन में दरख्वास्त दे दी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि सेनेट में अपोजिशन अराकीन की गैर हाजिरी बाद कयास न थी। तीनों बड़ी जमातों की लड़ाई कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। मिनी बजट पास कराने में हुकूमत और अपोजिशन बराबर की शरीक है। तीनों जमातें मुल्की और आलमी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद चाहती हैं। उन्होंने मुल्क को IMF की गुलामी में धकेल दिया। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात अफसोसनाक हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ हैं। उन्होंने जमात इस्लामी कराची को सिंध हुकूमत से लोकल गवर्नमेंट बिल पर मुआहदे की मुबारकबाद भी दी। एक तरफ किसान धक्के खा रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान माफिया की करप्शन का बाजार गर्म है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब बरस पड़ी। कहा, हुकूमत ने किसानों को भिखारी बना दिया है। उन्होंने खाद बहरान का जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान को करार देते हुए कहा कि इमरान माफिया एक ही अंदाज में हर बार डाका डालता है। आटा, चीनी, LNG में भी यही वारदात पहले हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन के पास इंतशार की सियासत के सिवा कोई एजेंडा नहीं, उन्हें आवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। बयान में वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि मुस्तरदशुदा अनासिर मुल्क को दुरुस्त सिमत पर देखकर बौखलाहट का शिकार हैं। कोरोना पर मनफी सियासत करने वालों को तौबा कर लेनी चाहिए। माजी में इन्हीं जमातों ने मईशत को तबाह बर्बाद किया। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत ने तब्दीली की बुनियाद रख दी। करप्शन और लूट मार का खात्मा PTI की अव्वलीन तरजीह है। करतारपुर राहदारी ने 75 साल से बिछड़े 2 भाई मिलाए तो नई दिल्ली में कायम पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बिछड़ों की मुलाकात को तवील और खूबसूरत बनाने की ठान ली। भारतीय शहरी सिक्का खान को वीज़ा जारी कर दिया। फैसलाबाद के मोहम्मद सिद्दीक ने बिछड़े भाई के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की जानिब से अमन और आश्ती का पैगाम। इबादत की अदायगी के साथ साथ बिछड़े लोग भी मिलने लगे। रोटी खा दे पाकिस्तान ने 75 बरस बाद करतारपुर में मिलने वाले 2 भाइयों की दोबारा मुलाकात का एहतमाम भी कर दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने सिक्का खान को वीजा जारी कर दिया, जिस पर सिक्का खान खुशी से निहाल हो गए। बहुत खुशी का जी, वीजा मिल गया, जाके मिलूंगा। धन्यवाद करता सारा
पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक वीजा फ्री करतारपुर कॉरिडोर लोगों को एक दूसरे के करीब ला रहा है। दूसरी जानिब मोहम्मद सादिक अपने भाई को वीजा मिलने पर खुश हैं। कहा, ढोल बाजों के साथ भाई का इस्तकबाल करेंगे, भाई मान गया तो पाकिस्तान में उसकी शादी भी कराऊंगा। यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में कामयाब यौम सियाह पर भारतीय फौज आपे से बाहर 4 अजला में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। श्रीनगर, शोपियां, कुलगाम और गांदरबल के अजला में कई घंटों तक आबादियों को मुहासरे में रखा गया। शदीद सर्दी में मकीनों को घरों से निकाल कर तलाशी ली गई। इस दौरान चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान निशात में ज़ेर तामीर इमारत की छत गिर गई। आपको अपडेट कर दें कि मलबे से एक शख्स की लाश और 2 जख्मियों को निकाल लिया गया है। मलबे तले दबे 9 अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त हाजी हनीफ के नाम से कर ली गई है। ऑनलाइन गेम पबजी की बंदिश के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तफसीलात मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। शहरी तनवीर अहमद ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसासत से दरखास्त दायर की। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, पीटी और दीगर को फरीक बनाया गया है और मौके पर इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान में पबजी गेम के मनफी असरात से कई हलाकतें हो चुकी हैं। लाहौर में पबजी के इस्तेमाल से 14 साल लड़के ने अपनी माँ और बहन भाइयों को कत्ल किया। दरखास्त गुजार के मुताबिक पबजी के इस्तेमाल से नौजवान नस्ल की ज़हनी सेहत और जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हो रहे हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। दरखास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि भारत में ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने के लिए बाकायदा कवानीन वज़ा किए गए हैं, लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट ऑनलाइन गेम पबजी पर फौरी पाबंदी आयद करने का हुक्म दे। मोहम्मद फैसल खान, न्यूज़ 1 लाहौर। रूस यूक्रेन कशीदगी में अमेरिका भी कूद गया। सदर जो बाइडन ने अपने फौजी यूक्रेन भेजने का ऐलान कर दिया। यूक्रेनी सदर नाम लिए बगैर अपने इत्तेहादी बाइडन पर बरस पड़े। कहा, अफरा तफरी फैलाने की ज़रूरत नहीं, रूस से तनाव है, लेकिन आलमी रहनुमा समझते हैं जैसे कल ही जंग होने वाली है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सिक्योरिटी से मुतालिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। रूस तनाज़े पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने फौजी यूक्रेन भेजने का ऐलान कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मशरकी यूरोप भेजे जाने वाले फौजियों की तादाद जाहिर नहीं की गई। पेंटागन सरबराह ने दावा किया है कि रूस सरहद पर अस्करी तामीरात कर रहा है। रूस जान ले जंग बहुत खतरनाक होगी। उधर आलमी रहनुमाओं के बयानात पर यूक्रेनी सदर ने अमरीकी हम मनसब जो बाइडन का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि अफरा तफरी फैलाने की जरूरत नहीं, रूस से तनाव है, लेकिन आलमी रहनुमा समझते हैं जैसे कल ही जंग होने वाली है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का फ्रांसीसी हम मनसब मैक्रोन से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, अमरीका और नेटो सिक्योरिटी से मुतालिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को यकसर नजरअंदाज कर रहे हैं। फ्रांस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पुतिन ने कहा कि वो जंग नहीं चाहते। दुनिया में तेल की कीमतें 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मंडी में खाम तेल और गैस की कीमतों में मुसलसल 6 हफ्तों से इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह बैनुल-अक़वामी सियासी अदम इस्तेहकाम और रसद के खदशात हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल $1.25 फी बैरल से बढ़कर $90.69 की सतह पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास क्रूड की कीमत $1.05 इजाफे से $87.66 फी बैरल हो गई। तेल की कीमतों पर सियासी खतरात और सप्लाई में कमी के असरात पड़े हैं। आलमी मंडी में गैस की कीमत में भी 11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दौरान ट्रेडिंग फी BTU गैस की कीमत $4.76 हो गई। कोरोना वबा के बाद चीन में तेल की तलब में इस साल 7% इजाफे ने भी कीमतों को पड़ लगा दिए। यूक्रेन जंग, यूरोप को गैस सप्लाई मुअत्तली के खदशात और अरब इमारात पर हौसियों के हमले कीमत बढ़ने का बायस बने हैं।
बात करेंगे कुछ मौसम की। तो मुल्क भर में जाड़ा जोबन पर है, बाला इलाके सख्त सर्दी की लपेट में हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादलों के डेरे हैं, जबकि लाहौर में सूरज की आंख मचोली जारी है। कराची में धूप निकल आई है। महकमा मौसमियात ने फरवरी के पहले हफ्ते में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी है। कश्मीर से खैबर, बोलान से मेहरान, हर तरफ सर्दी का राज। महकमा मौसमियात ने फरवरी के पहले हफ्ते में बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में बारिश का स्पेल रंग जमाएगा। उधर आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में खून जमा देने वाली सर्दी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। वादियां बर्फ तले दब गईं, लोग घरों में महसूर। झील, दरिया, नदी, नाले सब जम गए। लह -18 डिग्री के साथ सरतरीन इलाका रहा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादलों ने डेरे डाल लिए। सूरज की आंख मचोली भी जारी है। लाहौर में यकबस्ता हवाओं ने शहरियों के दांत बजा दिए हैं। कराची में धूप निकल आई है। सूरज के जलवों ने सर्दी की शिद्दत में कमी कर दी है। शहर में सुबह और रात के वक्त ठंडी हवाओं का राज बरकरार है। कोयटा, पेशावर, मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी सर्दी ने डेरे डाल रखे हैं।